Hello friends, welcome to ProTalent and welcome to this 11th lecture and this topic is logarithm. आज हम logarithm के जो concept हमने कल सीखे थे that is lecture number 10 में जो सीखे थे उनमें से कुछ questions करेंगे and we will be coming up with one very important concept on logarithm which is Bayes change theorem. ठीक है, and in the next class we are going to work on logarithm inequalities. In the series of 3 sessions we will complete everything needed for logarithm, and logarithm is one of the very easy very comfortable chapter for large number of students. अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से काम होगा. कल हमने सीखा था log के बारे में. क्या सीखा था? We said that logs will give you exponents. ठीक है, so for example let's say there is number n is a to the power x, so I can do this log of n to the base a is equal to x. ठीक है, ये हमने कल सीखा था, आपको याद होगा. दिस इज बेस, दिस इज एक्सपोनेंट, ठीक है, एंड दिस इज नंबर. ठीक है, सो कोई भी नंबर का लॉग कोई बेस पे उसकी वैल्यू x होगी, विच मीन्स एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट. ठीक है, सो वहां से हमारा कंडीशन बना था n हैज टू बी ग्रेटर देन 0, a हैज टू बी greater than 0, a cannot be 1, yes or no. These are the various conditions we learned. ठीक है, at the same time we understood कि कोई नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं हो सकता. ठीक है, पर लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. ठीक है ना, चलो बढ़िया, ये सब हमने सीखा था. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट. लेट मी स्टार्ट विद टुडेज एजेंडा. इनिशियली वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी विल कम बैक to understand the concept of Bayes change theorem and we will be solving lot of questions about it. ठीक है, let's start. For example, this is a question, जो भी हमने अभी तक सीखा है उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा कहानी डिपेंडेंट है. चलिए, let me start. So this can be written as log to the base 3 और यहाँ पे अंडर रूट जा रहा है. ठीक है, so this is log 3 to the base 2 into log 6. Log 6 can be represented as, you can say, log of 2 into 3 to the base 2 into 12 can be written as log 2 square into 3 to the base 2 into log 24 can be written as log of 2 cube into 3 to the base 2 plus 1 minus log of 3 to the base 2 into log of 2 cube into 3 to the base 2 plus 8. Now why I am doing this? Because I know that ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है. मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं कुछ भी करने जाऊंगा, ठीक है, I don't have a, you can say, rule for it. The rule I have is log of x plus log of y can be written as log of x into y. That is possible. ठीक है, and that is the reason why I am writing in this particular format. ठीक है, चलो बढ़िया, लेट्स सी दिस. अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं जब इसको एक्सपांड करूंगा सो आई विल गेट log 3 टू द बेस 2. यहाँ पे भी ऐसा कुछ मिलने वाला है. लेट्स सी दिस. ठीक है, सो ये अंडर रूट चल रहा है. दिस इज log 3 टू द बेस 2 इनटू, अब ये जो है log x into y can be written as log x plus log y, so I can write down this as log 2 to the base 2 plus log 3 to the base 2. मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सही बात है ना. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है भैया, ये कंफर्टेबल है ना. ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए भाई. ठीक है, इनटू, है ना. अब आगे देखते हैं, इधर भी ऐसा ही कुछ होगा. सो दिस इज log 2 square to the base 2 plus log 3 to the base 2 into log of 2 cube to the base 2 plus log of 3 to the base 2, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस log of 3 to the base 2 into, ये हो जाएगा आपका log of 2 cube to the base 2 plus log of 3 to the base 2 plus 8. ठीक है ना. अब ये थोड़ा सा लंबा है ना, मेहनत है, इसलिए अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट दैट्स इट. इट जस्ट लंबा. मैथमेटिकली इफ यू ट्राई देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. नाउ लेट अस एज्यूम log 3 to the base 2 is equal to some value called x. अच्छा, x ले लूँ. हाँ, x यहाँ पे है नहीं, so I can take this. So this is log
3, ओके, अंडर रूट ऑफ दिस इज x इंटू ये log टू द बेस 2 इज 1 प्लस x, log 2 square to the base 2 is nothing but 2 plus x, log 2 cube to the base 2 is nothing but 3 plus x plus 1 minus x into आपको log 2 cube है, so that is also 3 plus x plus 8. ठीक है ना, चलो बढ़िया. Now this gives me one of the wonderful thing. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको. Now this is nothing but बेस 3 चल रहा है आपका. ठीक है, अब ये आपका क्या कैलकुलेशन बन रहा है. ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट सम इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1. ठीक है ना, यहाँ पे x प्लस 3 दे के रखा हुआ है, कुछ न कुछ ये अंडर रूट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कटेगा, ये पक्का है. ठीक है, लेट मी जस्ट अगेन से सी एंड वर्क आउट समथिंग कि भैया कैसे अपन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो व्हाट डू वी डू इज वी सिंपली अगेन से सॉर्ट इट आउट. अब एक बार मैं यहाँ पे इसको साइड पे लिख देता हूँ. ठीक है, आई गेट x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है ना, सो इफ आई लुक एट इट, ये x और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सो आई गेट 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या मिल रहा है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1. अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं y मान लेता हूँ, सो दिस इज y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 1, सो दिस बिकम्स y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, सो दिस इज नथिंग बट y प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, मैंने y को एज्यूम किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, आई होप दैट इज कंफर्टेबल. चलो बढ़िया. सो दैट मीन्स ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है. ठीक है, माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8. ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला गया. सो व्हाट आई गेट इज, है ना, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टू द बेस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8. ठीक है, this is what I'm generally getting. ठीक है, now this is once again a kind of new calculation which I have to work on, बराबर है, but that's an easy calculation so far I have got into. So I'm just working on this calculation. ठीक है, this is x square plus 3x, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया. We are left with 8 plus 1, so this becomes log of 9 to the base 3. Log of 9 to the base 3 is 3 square is 9, so the value is 2. इस पूरी कहानी का वैल्यू बन गया है 2. ठीक है, सो लगने में लॉग के क्वेश्चंस लंबे होते हैं. ठीक है, कैलकुलेटिव हो सकते हैं. ठीक है, पर बाय डेफिनेशन इफ यू आर सॉल्विंग इट, इट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन फॉर यू. ठीक है, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नोट. इफ यू हैव log x to the base a, remember log x to the base a is equal to log y to the base a. दोनों का बेस अगर सेम है, अगर दोनों का बेस अगर सेम है तो उनकी वैल्यू दिस x एंड y आर सेम. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर दिया log of x to the base 5 is equal to log of you can say y to the base 5, तो क्या x और y की वैल्यू सेम है? हाँ जी, ट्राई करते हैं. अगर इसकी वैल्यू a हो गई, सो इसको लिखा जाएगा 5 की पावर a इज इक्वल टू x, और ये लिखा जाएगा b है फॉर एग्जांपल, तो 5 की पावर b इज इक्वल टू यू कैन से y. अब हमें पता है, ठीक है, कि ये दोनों इन्होंने बोल दिया है कि भैया ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट है वो सेम है, तो इसको मैं यहाँ पे इक्वल टू a मानता हूँ. ठीक है, सो दैट मीन्स ये 5 की पावर a हो गया, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू y, ये हम प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, आई विल रिपीट वन मोर टाइम फॉर योर यू कैन से इजी अंडरस्टैंडिंग. लेट अस अज्यूम कि ये दिया गया है, तो इसको मैं मान लेता हूँ log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू b. सो दैट मीन्स a की पावर b इज इक्वल टू x, एंड यहाँ पे a की पावर b इज इक्वल टू y. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज व्हाट यू कैन डेफिनेटली
प्रूफ, इजी स्टफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए उसी बेसिस के ऊपर हम ये सवाल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स? बड़ा सिंपल सा तरीका बन जाता है, माइनस दिया है, सो आई नो माइनस कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, सो दिस बिकम्स log ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। log की वैल्यू 0 कब होती है? वी नो द log 1 इज ऑलवेज 0, सो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी, है ना, दैट इज x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1, ठीक है। सो दैट मीन्स x प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो वी से x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 is equal to 0. So what are we left with? ठीक है, we are left with x minus x, so this is minus x plus 4 upon 2x minus 3 is equal to 0. So we know 0 लाने के लिए, है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हैज नो वैल्यू, सो वी हैव टू सी व्हाट इज द वैल्यू। वैल्यू फॉर दिस इज माइनस x प्लस 4 इज 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, दैट इज द आंसर। इजी, चलो बढ़िया, दैट्स अ वंडरफुल स्टफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड हियर अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दे आर आस्किंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो टू गेट दिस, है ना, क्या बोला इन्होंने, log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2, ठीक है। सो वी जस्ट सॉ इन अ लास्ट क्लास कि अगर ऐसा दिया गया है, ठीक है, दैट मीन्स log ऑफ x और यहाँ पे बेस था a की पावर p कैन बी रिटन एज 1 अपॉन p इंटू log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है ना, ये हमने किया था, मतलब हाउ डू वी डू इट, ठीक है, वॉज वी कैन से अ काइंड ऑफ प्रूफ करके हमने देखा था, तो आज हम वो वापस रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, है ना, आज के दिन के, ठीक है। सो दिस इज log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2, दिस इज 1/2 log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है, बराबर है, ठीक है। अब हम इसको वी कैन से एक तरीके से रफ मतलब सॉल्व करना है, तो हमें एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी सिंपल। ये 1/2 इधर लेकर जाएंगे, तो हम बस छोटी चीज़ का वही ध्यान रखना था, विच इज कॉल x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2, सो दिस इज रिटन एज log ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 2, ठीक है, और ये हो गया आपका log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2। अब log 2 दोनों का सेम है, सो वी कैन कंपेयर एंड से x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कहाँ पे होता है? सो वी से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर वी गेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is equal to 0, so we get x minus 3 and x minus 2 and x minus 1 equal to 0, so we get x equals to 2 or x equals to 1, ठीक है। Now what is the question? Find the number of solution to the given equation. Number of solutions are 2 and 1, so number of solutions are 2, ठीक है। I can take x की वैल्यू, मतलब इफेक्टिवली अगर देखा जाए, ठीक है, तो मैं x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, विच इज रियली पॉसिबल, ठीक है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इफ आई टेक x इक्वल टू 1, द प्रॉब्लम इज दिस x माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड वी जस्ट सॉ कोई भी लॉग के अंदर हमारे पास ये जो आपका n है, मतलब ऐसा इक्वेशन होता है, ठीक है, कि log ऑफ you can say n to the base a is equal to x, वहाँ पे n has to be greater than 0, a has to be greater than 0 and a is not equal to 1, तो अगर मैं x equal to 1 लगा देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, so I can't take this solution, so number of solutions are not 2, it is 1, ठीक है ना। चलो बढ़िया, let's move forward and try and solve this, है ना, बड़ा मज़ेदार सा सवाल आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। so this is log of something is equal to 0, so I can consider ये कोई एक वैल्यू है which is n, which is log of n to the base 7
इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकता हूँ. पूरा लॉग है, उसको एक वैल्यू होगी ना कोई एक वैल्यू होती है वो, तो उसको हमने 1 मान मतलब n मान लिया है. अब log n टू द बेस 7 इज 0 विच मीन्स n इक्वल टू 1. ठीक है ना. सो विच मीन्स ये log ऑफ रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1. ये कब होगा? जब n इज इक्वल टू 1 है. जब n इक्वल टू 1 है विच आई विल पुट इट हियर, ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे 1 करके यहाँ लिख सकता हूँ. Yes or no? When do I get log of something as 1? बेसिकली उसका ये मतलब है ये वैल्यू और उसका बेस है वो दोनों सेम हो गया. Yes or no? In other words, root of x plus 5 plus root of x is equal to 5. ठीक है ना. Now that's straight forward. I have to solve it, है ना. स्क्वायर कर लूंगा मैं, so I'll get x plus 5 plus x plus twice of root of x into x plus 5 is equal to 25. So this becomes 2x plus 2 root of x square plus 5x is equal to 20. ठीक है ना. बड़ा सिंपल सा कहानी हमारे पास बन गया है ये. ठीक है. अब या तो मैं उसको स्क्वायर ही कर लेता हूँ दोनों तरफ. ठीक है. दैट विल बी 2 सब में से निकल गया. सो आई गेट x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x is equal to 10. So this is root of x square plus 5x is equal to 10 minus x. स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों तरफ. x square plus 5x is equal to 10 minus x का होल स्क्वायर. ठीक है. So this is x square plus 5x is equal to 100 minus 20x plus x square. x square कट गया, 20 इस तरफ आएगा, so 25x हो जाएगा is equal to 100, x is equal to 4. ठीक है. So the value of x is equal to 4. Simple, है ना. I'm sure all of you are able to get this idea. ठीक है. आगे बढ़ते हैं and we will try and solve this wonderful question. है ना. बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे एक इनसे आ रहा है जो आप आसानी से करने के काबिल होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. बट लेट्स सी दिस, है ना. ठीक है. लेट्स सी दिस. दिस इज x plus 1 to the power log of x plus 1 to the base 10 is equal to 100 into x plus 1. ठीक है. ये आपको देके रखा हुआ है. इज दैट ओके विद एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ रही है? श्योर. चलो ग्रेट. ठीक है. सो what can I do, है ना. what can I do here? I can take log on both side. Is it possible for me to take log on both side? Yes. So if I take log on this side, ठीक है, ध्यान से समझना क्या है ये. a की पावर b का अगर मैं log लेता हूं उसको तो लिखा जाता है b of log a, है ना. मतलब इन अदर वर्ड्स दिस इज log of a की पावर b, so b आगे आ जाएगा and that becomes log of a. ठीक है. Exactly that is the same I am doing. So this becomes log of x plus 1 to the base 10. ठीक है. ये आगे आ गया into log of x plus 1, और मैंने बेस यहाँ पे 10 ले लिया है. ठीक है. तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में log लिया. लेट मी टेक log ऑन राइट हैंड साइड. मल्टीप्लीकेशन में होता तो प्लस हो सकता है. सो दिस बिकम्स log of 100 टू द बेस 10 प्लस log of x plus 1 टू द बेस 10. ठीक है. ऐसे मैं लिख सकता हूँ. मैंने दोनों तरफ log ले लिया है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड. ठीक है. नाउ आई एम एज्यूमिंग दैट log x plus 1 टू द बेस 10 इज सम वैल्यू कॉल्ड p. सो दिस बिकम्स p into p is equal to, ये वैल्यू क्या है? दिस इज 10 square is 100. 100 is nothing but 2 times log 10 to the base 10 is nothing but 2 plus p. So this is p square is equal to 2p. ठीक है. p square is equal to 2p is telling me p into p minus 2 is equal to 0. So therefore p is equal to 1 or p is equal to 2. Simple. दो वैल्यूज आ रही है. Now I know what is my p. p is log of x plus 1 to the base 10 is equal to 1. अगर मैं इसको 1 मानता हूं, है ना, अगर मैं इसको 1 मानता हूं दैट इज p इक्वल टू 1. ठीक है. तो उस केस में x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 10. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9. परफेक्ट है, कोई पंगा नहीं है. सही है. ओके. प्रीटी क्लियर. ठीक है. Then the second could be log of x plus 1 to the base 10 is equal to 2. So therefore x plus 1
इज इक्वल टू 10 की पावर 2 दैट इज 100. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 99. ठीक है, चलो बढ़िया, वंडरफुल स्टफ, कोई पंगा नहीं है, बराबर है. ठीक है, सो ये हमें क्या मिल रहा है, दिस इज यू कैन से पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस पी. उप्स 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 उप्स, मैंने बड़ी गलती कर दी, प्लस को मैंने इंटू कर दिया. ठीक है, तो ये सब गलत हो गया भैया, कोई नहीं, है ना, देर आए दुरुस्त है, पता तो चल गया कि गलत हो रहा था कुछ. ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं, वापस करते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज नथिंग बट यू कैन से पी स्क्वायर is equal to 2 plus p. So this is p square minus p minus 2 is equal to 0. So this becomes p minus 2, and this is p plus 1 equal to 0. So what is p? P for us was log of x plus 1 to the base 10 is equal to p. So that is p is equal to या तो 2 है या तो p is equal to minus 1 है. So I'm taking this as a 2. So therefore x plus 1 is equal to 100. So therefore x is equal to 99. ये तो perfect था. अब देखते p is equal to minus 1. So that means log of x plus 1 to the base 10 is equal to minus 1. ठीक है, so therefore x plus 1 is equal to 10 की power minus 1. So therefore x plus 1 is equal to 1 upon 10, and therefore x is equal to 1 upon 10 minus 1. That makes it to minus 9 by 10. x की वैल्यू नेगेटिव है, पर क्या x प्लस 1 की वैल्यू नेगेटिव है? ना जी, ना जी, ना जी, ना जी. ठीक है, इफ आई टेक x की वैल्यू minus 9 by 10, x plus 1 will still be positive, which means x की दो वैल्यू है, एक 9 minus 9 by 10 और दूसरी वैल्यू है 99. ये दोनों यहाँ पे काम करेगी. सही है, चलो बढ़िया. आज अब हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है बेस चेंज थियरम. ठीक है, बेस चेंज थियरम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं और आप आसानी से इसको करने के काबिल बनेंगे. नाउ व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ बेस चेंज थियरम? लॉग ए टू द बेस बी इज, और दिस, है ना, मतलब ऐसा कि भैया log of 16 to the base 25 can be written as log of 16 to some new base, let's say 10 upon log of 25 to the same new base 10. Remember, this is 10 10. यहाँ पे c है ना, ये नोट करना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे आप दोनों ऊपर नीचे सेम लिख रहे हो, दोनों को आप ऊपर नीचे सेम लिख रहे हो. नोट किया जाए c इज ग्रेटर देन 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 1. ये सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है दैट a b एंड c आर ग्रेटर देन 0 वेर a, सॉरी यहाँ पे बेस क्या है b, तो b बेस है, और यहाँ पे c भी बेस है, तो b इज नॉट इक्वल टू 1, c इज नॉट इक्वल टू 1. तो ये कर सकते हैं भैया. ठीक है ना, प्रूफ करके देख लेते हैं, समझदारी की बात है. लेट्स टेक RHS फर्स्ट. सो वी नो लॉग ऑफ a टू द बेस b, है ना, इसको हम x मान लेते हैं. सो देयरफॉर वी नो दैट b टू द पावर x इज इक्वल टू a. हम ऐसा लिख सकते हैं. सही है, चलो बढ़िया. लेट्स टेक, यू कैन से, है ना, दिस इज LHS था भाई, है ना. लेट्स टेक RHS. व्हाट इज RHS? लॉग ऑफ a टू द बेस c अपॉन log of b to the base c. ठीक है, now I know a is nothing but b to the power x. So this is b to the power x base c, this is log b to the base c. ठीक है, so what happens? This can be written as x times log of b to the base c upon log of b to the base c. है ना, ये मस्त लगता है, कट जाएगा, कट गया. What is the value? This is x. So RHS is x, LHS was also x. So दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. बिल्कुल ध्यान रखना, ये बड़े काम की चीज है. log a to the base b बोला, you can directly write log a upon log b to any some new base. Very important part, very important part. इसको स्टार मार्क करना हो, जो नोट करना है प्लीज कर दीजिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. ठीक है, उसके ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है, उसको भी हम प्रूफ करके देखेंगे. प्रूफ है इसका, देखते हैं क्या बोला इन्होंने. log b to the base a is written as 1 upon log a to the base b. प्रूफ करते हैं, बड़ा सिंपल है. सो log of b to the base a
कैन बी रिटर्न एज log of b to some new base c, मैं LHS ले रहा हूं, and this is log of a to some base c. ठीक है ना, चलो बढ़िया. Now what happens? This can be written as 1 upon log of a to the base c upon log of b to the base c. It is like कि अगर c by d है मेरे पास, so I can write down 1 upon d by c. ठीक है, exactly on the same line I have written. ठीक है ना. अब आप देखिए कि अगर मेरा बेस चेंजिंग थियरम क्या बोलता है कि अगर log a to the base b है, I can write down log a upon log b. So log a upon log b can be written as log a to the base b. So यहाँ पे log a to the base b लिख सकता हूँ. Yes, so this is log of a to the base b. So that means it is proved. ठीक है ना, चलो बढ़िया. Same line we try to prove it here. a to the power log c to the base b. नोट करना बड़ा मजेदार है ना, बड़ा मजेदार है. a to the power log of c to base b, c to the power log a to the base b. नोट करना log में दोनों का बेस यहां पे सेम है. ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, चलो ट्राई करते हैं. वी हैव LHS which is a to the power log of c to the base b can be written as a to the power log of c upon log of b. ऐसे लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है. श्योर, चलो बढ़िया. सो दिस कैन बी रिटन एज a, है ना, और इसको नया बेस a ले लेते हैं. ठीक है, ताकि अपने लिए कन्वीनियंट हो जाए. सो दिस विल बी रिटन एज log of c to the base a to the power 1 upon log of b to the base a. ऐसे लिख सकते हैं. सही है ना, ऑल ऑफ यू? ग्रेट. नाउ इफ यू रिमेंबर a की पावर log c to the base a, यहाँ पे a है, उसके ऊपर log की पावर है और उसका बेस a है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है पूरा c. c इज 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a. और अभी हमने बाजू में देखा था कि log of b to the base a can be written as 1 upon log of a to the base a. So that means this is written as c to the power log of a to the base b. सही है. So that means LHS is equal to RHS. हम प्रूव कर पा रहे हैं ये और ये सेम है, तो हमारा काम हो गया. Yes or no? Wonderful thing, wonderful thing. ठीक है, these are some of the important results. Based on that we will solve certain questions. ये रहा हमारे सामने अच्छा सा सवाल. ठीक है, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है. हमारे पास दिया गया है 7 की पावर log 5 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द log टू द पावर 7, 3 की पावर log 7 टू द बेस 5 माइनस 5 की पावर log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 की पावर log 3 टू द बेस 5. ये दिया गया अपने को, है ना. ठीक है, नाउ वी नो दैट. अभी हमने ये देखा. ठीक है, क्या दिखा था, एक बार आपके सामने यहाँ लिख दूं मैं. a की पावर log c टू द बेस b इज इक्वल टू c टू द पावर log a टू द बेस b. ऐसे लिख सकता है. विच मीन्स अगर ये 7 है, ठीक है, अगर ये 7 है, बराबर है, सो आई कैन राइट डाउन दिस. ये 5 और 7 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं. सो दैट मीन्स आई कैन राइट डाउन दिस एज 5 log ऑफ 7 टू द बेस 3. मैं ऐसे लिख सकता हूं. और ये जो 3 है और ये 7 है, उसको भी मैं इंटरचेंज कर सकता हूं. 7 log ऑफ 3 टू द बेस 5 माइनस 5. ये तो ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूं मैं. ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट जाएगा. ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट जाएगा. सो द वैल्यू विल बी 0. सिंपल है, बड़ा मस्त चीज है. अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखी है तो आपके लिए कहानी बड़ी मस्त, इजी और आसानी से क्रैक करने के काबिल बनेगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमें ये प्रूव करना है कि भैया प्रूव करिए कि इसकी वैल्यू ये होती है ना. अब हमने देखा बेस के अंदर, बेस चेंज के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं कि log a2 टू द बेस a1 कैन बी रिटन एज log ऑफ a2 टू सम बेस, है ना. अब मैं लिखूं कि ना लिखूं चलेगा. a1 इंटू log ऑफ a3 अपॉन log ऑफ a2 इंटू log ऑफ a4 अपॉन log ऑफ a3. ठीक है, और ऐसा करते 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 मैं जाऊंगा log ऑफ an अपॉन log ऑफ an माइनस 1. ऐसा लिख सकता हूं मैं. ठीक है,
अब हमारे लिए यहाँ पे बहुत इजी कहानी बन रही है कि सब कुछ कटना चालू होगा, log a2 log a2 log a3 log a3 log a4 log a4, ऐसा करते 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 यहाँ log an minus 1 तक सब चीज़ें कटेगी. सो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ log of an upon log of a1. Therefore, this will be written as log of an to the base a1. तो ये और ये प्रूव हो गया, कहानी इजी बन गई. मैंने इसलिए बताया आपको कि अगले सवाल में इसकी इजी ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसको. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? log of 16 अपॉन log of a इंटू log of a अपॉन log of b इंटू log of b अपॉन log of c. ठीक है, इंटू log of c अपॉन log of d, है ना, इंटू ऐसे दिया गया है और लिखेंगे इसको log of x अपॉन log of 2. कैसे कटेगा? log a कटेगा, log b कटेगा, log c कटेगा, log d कटेगा, log x कटेगा. yes or no? So what we will be left with? We will be left with log 16 upon log 2. Log 16 can be written as 4 times log 2 upon log 2. तो log 2 कट गया and we are left with 4. और इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? 4. इजी. चलो बढ़िया. बेस चेंज के अंदर कितना मस्त चीज है. ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n वेयर पाई is equal to r equal to 1 to the n log of r plus 1 to the base r plus 2 to the base r plus 1 is equal to 10. सर ये पाई क्या होता है? हमको तो पाई देख के डर लगता है. अरे भाई, आपके सर ने सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर, ये सुनो कि पाई का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. दो तरीके देखे थे हमने. एक है पाई इज मल्टीप्लिकेशन और एक देखा था हमने सिग्मा, उसका मतलब था एडिशन. ये सुनो, इसका क्या मतलब है? इफ आई टेक r equal to 1, this will become log of r equal to 1, that is 1 plus 2 3 upon 2 into r equal to 2 करूंगा, so this will become 4 and this will become 3. r equal to you can say 4, तो ये हो गया आपका 5 4. और ऐसे करते 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 I will write down log of n plus 2 to n plus 1 is equal to 10. ठीक है ना? चलो बढ़िया. So this will be written as log of 3 upon log of 2 into log of 4 upon log of 3 into log of 5 upon log of 4. ठीक है, और ऐसे करते 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 log of n plus 2 upon log of n plus 1 is equal to 10. अब सब चीज़ें कट रही है, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ऐसे करते 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 n plus 1 तक चीज़ें कटेगी. So I will be left with log of n plus 2 to the base 2 is equal to 10. I know that 2 की power 10 is equal to n plus 2, है ना. I know 2 की power 10 is nothing but 1024. This is n plus 2, so n की वैल्यू हो जाएगी 1022. सिंपल है ना? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. थोड़े से मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ लिखने में. क्वेश्चंस भारी भरकम नहीं है. ठीक है, क्वेश्चंस भारी नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ अजीब है, बाकी सब इजी है. और लॉग के क्वेश्चन हमेशा फंडामेंटल अगर पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको दुनिया में कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी. जैसे आपके सामने दिया है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस a बाई बी. ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस b बाई सी, z इज इक्वल टू सेम. ठीक है, और फिर पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई वे में कर दूं तो बेस अगर इसका मैं एक इनसे गिन लूं, दिस इज z क्यूब x क्यूब y क्यूब ऐसा करना है मेरे को, तो मुझे मिलेगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई जेड अपॉन सॉरी दिस इज z क्यूब, दिस इज x क्यूब प्लस एक्स वाई जेड अपॉन y क्यूब. ठीक है, चलो बढ़िया, ये दिया गया है, इसको आंसर देना है अपने को और कुछ नहीं देना है. चलो देखते हैं. सबसे पहले x की वैल्यू क्या है. x कैन बी रिटन एज log of abc to the base a by b, which is nothing but log of abc
upon log of a by b, which is nothing but log of abc upon log of a माइनस log of b. मैं से लिख सकता हूं भैया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, चलो बढ़िया. So in other words, if I have to write 1 upon x, note करना, if I have to write 1 upon x, what will happen? 1 upon x will be, मैं यहां से बनाऊंगा, 1 upon x can be log of a minus log of b upon log of abc. सही है? बराबर है? चलो ग्रेट है, फिर तो कहानी बड़ी मजेदार हो गई. तो अगर 1 अपॉन एक्स ये है ना, तो सब कुछ बाकी y और z भी ऐसे ही काम करेगा. सो 1 अपॉन एक्स इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b अपॉन log ऑफ abc. 1 अपॉन y विल बी log ऑफ b माइनस log ऑफ c. नोट करना, यहाँ b बाई c था, ठीक है, तो log b माइनस log c होने वाला है, अपॉन log ऑफ abc. एंड 1 अपॉन z विल बी log ऑफ c minus log of a upon log of abc. So that means अगर मैं ऐसा करूं 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z करता हूं, ठीक है, so what will happen? है ना, what will happen? The idea I will get here is, है ना, इन सबका एडिशन करूंगा तो आपका बेस जो है वो है log abc, वो तो सेम है ना, और ये क्या हो जाएगा? log a माइनस log b प्लस log b माइनस log c प्लस log c माइनस log a. आप देख सकते हैं ना, log a माइनस log b माइनस log c माइनस log, तो ये सब तो कट के जीरो हो जाएगा. ये सर नो, सो ये सब कट कुटा के जीरो हो जाएगा. सो इसकी वैल्यू क्या है? जीरो. सही है? इज दैट कंफर्टेबल? चलो बढ़िया. तो अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो वहां से मुझे एक क्यूब वाला यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, ठीक है ना. ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी. उसमें से मैं एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दूँ तो मेरा एक्स वाई जेड जो कॉमन निकल गया, तो अंदर बचा क्या? 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब बचा, ठीक है. और मुझे याद है एक फॉर्मूला जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के पहली क्लास में हमने सीखी थी, विच इज सेड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो मैं ये बोल सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. मैं ऐसे लिख सकता हूं, विच मीन्स अगर मेरा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू जीरो, सो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब is equal to 3 times 1 upon x, y, z. मैं से लिख सकता हूं. सही है? ठीक है. Which means ये जो इक्वेशन हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई है? ये चीज है, उसकी वैल्यू हो गई है ये. So that means this is x, y, z into 3 upon x, y, z. आंसर would be 3. So इसका वैल्यू हो जाएगा 3. सही है? मस्त चीज है, बड़ी मस्त चीज थी, ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस बातों को पकड़ पा रहे हैं. आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं. बड़ा मजेदार सा सवाल आपके सामने दिख रहा है ये, ठीक है. ये बोल रहा है इफ एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a to the power 7, sorry, a to the power log 7 to the base 3 is equal to 27. b to the power log 11 to the base 7 is 49. And c to the power log 25 to the base 11 is root 11. Find the value of ये, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है. उसका क्या मतलब है समझना. इसका मतलब है a की पावर log of 7 to the base 3 to the power log of 7 to the base 3 प्लस b की पावर log of 11 to the base 7, क्योंकि स्क्वायर बोला था, स्क्वायर मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूं, प्लस c log of 25 to the base 11 to the power log 25 to the base 11. ऐसे लिख सकता हूं. सही है ना? चलो बढ़िया. That's a wonderful thing. Now I know this value. This is 27. Great. So this is 27.
ये वैल्यू है 49, ये वैल्यू है √11, चलो बढ़िया. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. 27 is nothing but 3 cube. So this is 3 cube की पावर log of 7 to the base 3. इन अदर वर्ड्स, है ना, मैं जब इसी चीज को एक यहां पे आपको अच्छे से समझा के देता हूं, बाकी मैं क्विकली कर लूंगा. ठीक है. This can be written as 3 times, so 3 to the power 3 times log of 7 to the base 3. This can be written as 3 की पावर log of 7 cube to the base 3. So अगर ये 3 की पावर log है और बेस भी 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 क्यूब. सही है? पक्का? चलो बढ़िया. So what is this? This is nothing but 7 cube. ये होने वाला है 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर जाएगा 11 के स्क्वायर में. ये होने वाला है 11 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 25 की पावर 1/2. 7 क्यूब इज 343. 11 स्क्वायर इज 121. 25 का स्क्वायर रूट इज 5. इनका एडिशन 5 1 6 6 3 9, 4 2 6, 3 और 1 4. आंसर इज 469. ठीक है, इसका आंसर है 469. सिंपल है, कर पाएंगे आप लोग? चलो बढ़िया. एक और सवाल इसके जैसा ही, बड़ा मजेदार है. saying that find the value of this. So I know that 1 upon something can be written as log of 3 to the base 2 plus 2 times log of 9 to the base 4 minus 3 times log of 27 to the base 8. इसको मैं लिख सकता हूं log of 3 to the base 2. यहां पे 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 2 स्क्वायर है. वो 2 इसका आगे आएगा और इसका नीचे का 2 है, वो एक दूसरे को काट लेंगे. सो दिस विल बिकम log of 3 to the base 2 माइनस 3 इंटू ये 3 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, तो दोनों का 3 3 चला जाएगा. ठीक है. सो वो होगा 3/3. इधर एक्चुअली 2/2 था, ऐसे 3/3 इंटू log of 3 to the base 2. ये कट गया, ये कट गया है. सो वी आर लेफ्ट विथ log 3 to the base 2 एक बार, 2 बार और ये 3 बार. तो 1 + 2 3 minus 3, this becomes 0. So answer would be 0. ठीक है ना. Some of you may be thinking कि सर इन सब का आंसर क्या से 0 और 1 ही आता है क्या, है ना? क्या हम डायरेक्टली इसको 0 1 लिख दे? हाँ, मतलब चाहे तो लिख सकते हो विथ योर रिस्क, है ना. ऐसा थोड़ी होता है, मतलब भैया ये सब है ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं तब 0 आ रहा है. ठीक है. कभी कभार आंसर अलग आता है, कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है. आप देखिए ना, इसका आंसर हम निकाले थे 469. ठीक है. तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा ही हमेशा 0 होता है. ठीक है. चलो बढ़िया. एक और मजेदार सा एक ऐसे चीज हमें प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, जिसको, है ना, आप अगर इसको याद रखेंगे ना तो आपको बड़ा फायदा होगा. ठीक है. आपको इसको बड़ा फायदा होगा. आपको याद होगा, है ना, हमने ऐसा कुछ आगे देखा था. अगर ये 1/2 नहीं होता, है ना, रूट नहीं होता, तो इसको लिखते log of b to the base a. क्या लिखते? a की पावर log और बेस a ही है, तो इसका आंसर होने वाला था b. सही ना. चलो बढ़िया. लेट्स सी दिस. सो वी हैव LHS which is a की पावर log of b और ये उसका पावर 1/2 है. ये नोट करना. ठीक है ना. ये ऐसी बात चल रही है. क्लियर है? ओके. ठीक है. तो विच मीन्स आई कैन सिंपली राइट दिस एज, नोट करना बड़ा मजेदार तरीके से मैं लिख रहा हूं, a की पावर log b to the base a अपॉन अंडर रूट ऑफ log b to the base a. मतलब अगर मुझे √2 को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन √2. वैसे ही ना, तो मैंने वैसे ही लिखा यहां पे. दिस बिकम्स इजी. सो नाउ दिस मीन्स a to the power log of b to the base a की पावर 1 अपॉन रूट ऑफ log of b to the base a. अब ये जो वैल्यू है a की पावर log है और उसका बेस a है, तो वो उसकी वैल्यू सीधी हो जाएगी b. सो दिस बिकम्स b की पावर
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ बी टू द बेस है। अब मैं अगर बेस चेंज कर दूं तो 1 अपॉन की जगह पे ऊपर चला जाएगा ये, तो ये सीधा लिख दूंगा मैं b की पावर अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ a की बेस b। ठीक है ना, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। सही है ना? ठीक है दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, ऐसे जो मैं आपके सामने प्रूफ डाल रहा हूँ, उन फॉर्मूलाओं को याद रखना, वो प्रूफ को याद रखना, क्योंकि वही आपको एग्जाम में बड़ा स्कोर दिलाएगा। आप शॉर्ट वे में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं क्विकली, बहुत सारी चीज़ें करनी है अपने को। ठीक है, चलो ग्रेट, अगला सवाल, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, अभी हमने देखा था कि 3 की पावर अंडर रूट ऑफ लॉग 5 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, अगर ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो कट जाएगा, कट जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू -3 प्लस 2 equal to 0, and therefore this becomes x square minus 3x plus 2 equal to 0. So therefore x minus 2 into x minus 1 equal to 0. So therefore x equals to 2 or x equals to 1. इन्होंने बोला sum of the roots would be 2 plus 1 3. सही है, क्लियर है, इजी, चलो बढ़िया। ठीक है, ये आपने अभी देखा, ये देखिए ये दोनों सेम है, और मैंने इसी वजह से इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, चलो बढ़िया, इसको सिंप्लीफाई करने को अपने को काम दिया गया है, कोई नहीं, विल सी वी आर एबल टू मैच दिस और नॉट। ठीक है, ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 81 की पावर log 5 टू द बेस 9, सही, मैंने इंटरचेंज कर दिया, प्लस 3 की पावर 3 टाइम्स, और इन अदर वर्ड्स log ऑफ √6 का क्यूब टू द बेस 3 अपॉन 409 इंटू, ये √7 था, इसको मैं लिख देता हूं √7, तो 1/2 इंटू 2 इंटू log ऑफ 25 टू द बेस 7 माइनस 5 क्यूब, और ये आगे आ जाएगा 3/2, है ना, या 5 क्यूब लिख देता हूं, और इसको मैं लिखूंगा 625, ऐसा भी चलेगा। सही है, अब आप देखिए 81 क्या है ना, 81 क्या है भैया, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये लिख देंगे अपन 9 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मतलब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अगेन से 5 के नज़रिए से, है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना, या मैं सीधा इसको लिखूं, इसको ऐसा लिख दूं मैं कि भैया 5 की पावर log ऑफ 81 टू द बेस 9, ऐसा भी लिख सकता था। ठीक है ना, बराबर है। तो इन अदर वर्ड्स इसकी वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, √6 की पावर 3 है, और ये 409 है, ये 2 कैंसिल हो रहा था, इसकी वैल्यू है आपकी 25 माइनस ये 6 यहाँ पे गया, 6 क्यूब है, और ये 5 स्क्वायर है, तो ये 6 की पावर 3/2 हो गया। सही है, सो इन अदर वर्ड्स वी हैव 25 प्लस 6 की पावर 3/2 इंटू 25 minus 6 की पावर 3/2 upon 409. This will be a plus b into a minus b. So this is a square minus b square. 25 का स्क्वायर 625 माइनस स्क्वायर इज 6 क्यूब, 6 क्यूब हो जाता है आपका 216 अपॉन 409. 625 माइनस 216 इज 409, सो आंसर वुड बी 1, इसका वैल्यू हो गया 1. सही है, आप ये नंबर देखने के काबिल होने चाहिए कि कैसे ऊपर नीचे चीजें बदल रही है. ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, सेइंग दैट नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन क्या होगा, है ना. नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, वन इज 2x² प्लस 7x प्लस 5. दिस इज लॉग ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, चलो तो इसको लिखेंगे कैसे.
2x square plus 5 can be written as, this is 2x plus 1 into, sorry, 2x square plus 5x, okay, so this is 5, अंदर बचेगा x plus 1 upon x plus 1, and this is nothing but x plus 1 and x plus 1. Now when multiplication is given, उनका addition होगा, so this will be written as log of 2x plus 5 to the base x plus 1 plus log of x plus 1 to the base x plus 1, this is plus log of x plus 1 to the base 2x plus 1, मतलब इसको 2 times ही लिख देता हूँ अगर, वो better है, minus 4 equal to 0. So let us assume log of x plus 1 upon 2x plus 5 is equal to t. So this is t plus 1 plus 2 upon t minus 4 equal to 0. सही है, चलो बढ़िया, ठीक है. So this is t square minus 3t plus 2 equal to 0. So this becomes t minus 2. This is t minus 1 equal to 0. So t की वैल्यू या तो 2 है, तो log of x plus 1 upon 2x plus 5 is equal to 2. So therefore 2x plus 5 का whole square is equal to x plus 1. Simple है. So therefore this is 4x square plus 5 2 are 10 plus 20x plus 25 is equal to x plus 1. So we are left with 4x square plus 19x plus 24 equal to 0. ठीक है, फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बराबर है, ठीक है. ठीक है, 24 4 जा, so can I do this? प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, हाँ जी, ठीक है, विच इज़ फाइन, बराबर है. ओके, प्रीटी कूल, ठीक है. कुछ भी कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा. डिड आई डू राइट? 2x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 1. t square minus 3t plus 2, तो t is equal to this, ठीक है. लुक्स ओके, लुक्स ओके, कोई पंगा नहीं है. 24 इंटू 4 इज नथिंग बट 12 इंटू 8, 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, और ये 19 आ रहा है, तो ये तो कट नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है. इससे कुछ वैल्यू बनेगी, एक और वैल्यू ले लेते हैं अपन, t minus 1 equal to 0. So that means log of x plus 1 upon 2x plus 1 is equal to 1. So that means it means 2x plus 1 is equal to x plus 1. 1 1 कट गया, so therefore x common, 2x minus x is equal to 0. So therefore क्या निकलेगा मेरा, x2 equal to 0. That's also not possible. ओ 2x plus 5 है, सॉरी मैंने कहीं गलती करी है, हाँ जी. 2x plus 5 equals to this. So therefore 2x plus 5 is equal to x plus 1. अब बराबर है, so therefore x is equal to minus 4. ठीक है, x equal to minus 4 है, और यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी, ठीक है. ठीक है, सो x की 2 वैल्यू निकलेगी, एंड दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac के तरीके से निकलेगा. अनकंफर्टेबल कैलकुलेशन, बट दैट्स फाइन, ठीक है. लॉग ऑफ ओ गलती मैंने एज्यूम करा था लॉग ऑफ 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 इक्वल टू टी. मैंने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी. चलो तभी तो आंसर नहीं आ रहा था ढंग से.
ठीक है, तो इसको लिखेंगे वापस, log ऑफ 2x plus 5 to the base x plus 1 is equal to 2. So that means x plus 1 का whole square is equal to 2x plus 5 and therefore x square plus 2x plus 1 is equal to 2x plus 5. 2x चला गया, so therefore x square minus 4 equal to 0, so therefore x is equal to 2 और x is equal to minus 2. सही है ना, x is equal to 2 और x equals to minus 2. ठीक है, सो अब हमारे पास क्या बना, अब हमारे पास ये x इक्वल टू 2 तो यहाँ पे पॉजिटिव दे देगा, यहाँ पे पॉजिटिव दे देगा, कोई पंगा नहीं है. इफ आई टेक x इक्वल टू माइनस 2, सो इफ आई टेक माइनस 2, सो दिस विल बिकम प्लस 1. बेस 1 कैन नॉट बी पॉसिबल, रिमेंबर दैट, है ना, बेस 1 कैन नॉट बी पॉसिबल, सो x इक्वल टू माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इफ आई टेक x इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, सो दैट विल बी बेस वंस अगेन बिकम्स नेगेटिव नंबर, that is also not possible. Number of solution to this equation is only one, which is x equal to 2, that is positive. सही है, चलो बढ़िया, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टफ है. ठीक है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, वी विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, है ना, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन आपके सामने. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा मजेदार है. क्या दिया गया था, 2 ऑफ लॉग ऑफ a टू द बेस x प्लस लॉग ऑफ a to the base ax plus 3 to the base log of a to the base b is equal to 0, है ना, and solve this. That means find out the value of x. ठीक है, so this will be written as twice of log of a to the base x plus log of a upon log of a plus log of x. ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना, और इसका बेस में अगर x ले लूँ तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b को लिख देता हूं मैं a स्क्वायर x. सही है, मतलब मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, है ना, आई डोंट हैव एनी मेजर ट्रबल विद दिस एंटायर आइडिया. बराबर है, ठीक है, चलो कोई नहीं. या तो मैं इसको अलग नज़रिए से लिख दूं, इफ आई राइट, चलो यही बराबर है, मेरे मन में चल रहा था कि लॉग ऑफ a टू द बेस x को मैं उल्टा कर दूं, पर ठीक है, चलो अभी तो ऐसे लिख देते हैं. ये 1 था, log ऑफ x टू द बेस x मतलब ये 1 ही हो जाएगा. ठीक है, अब मैं log ऑफ a टू द बेस x को अगर मैं y मानता हूं, y इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस x, सो दिस बिकम्स 2y प्लस y अपॉन y प्लस 1 प्लस 3y अपॉन 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है. अब मेरे लिए ये नॉर्मल सा इक्वेशन बन गया वेर आई विल सॉल्व इट. ठीक है, अब मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप LCM लेकर, ठीक है, इसको सॉल्व करिए. ठीक है, दैट इज़ वंडरफुल थिंग. और यहाँ से आपकी x की वैल्यू बनेगी, आपका फाइनल आंसर आने वाला है x इज इक्वल टू a की पावर -4/3 एंड x इज इक्वल टू a की पावर -1/3. इस तरीके से आने वाला है. ठीक है, प्लीज़ इसको चेक करिएगा, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू. ठीक है, चलो बढ़िया, है ना, बढ़िया मज़ेदार सी कहानी है आपके लिए. बेस चेन थियरम हमने आपके लिए सॉल्व किया, इसको अच्छे से 2 बार कर लीजिएगा. ये लेक्चर नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 12 आएगा, वापस लॉग का आएगा, और उसी के अंदर हम और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखेंगे. ठीक है, चलो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी विथ दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. डोंट मिस आउट to subscribe our channel and tell to large number of people to be part of ProTalent. Okay, all the best.